People will forget what you said. People will also forget what you did to them, but they will never forget how you made them feel. This is what the essence of the entire hospitality sector is. Hi everyone, this is Prajwal, your hotelier buddy at Fool's Den, and I am here to throw some light on the one of the important section of the major management entrance examinations in India, that is aptitude for service sector or service sector aptitude. So before I begin this video, मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि do watch this video till the end because इसमें NCHMC, TJEE and other hotel management entrance examinations in India से related एक बहुत ही important information छुपी हुई है. Do watch this video till the last ताकि आप उन चीजों को grasp कर पाए. And there are also some other videos जो जिनकी links हम description box में दे रहे हैं नीचे. Do go and watch them if you want to understand the concept of NCHM CT in a better way. So without any delay, let's start this video. So before we begin the session, पहले ये जानना शायद सही रहेगा कि ये particular section हमारे लिए क्या टेस्ट करता है और इस सेक्शन में ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पर अपनी स्किल को दिखाना पड़ता है. So the first thing is that it checks the holistic development of the candidate and the moral attitude towards the subject of hospitality. So in the field of hospitality, there are thousands of things जो हमें as an employee, as an entrepreneur or as a working professional करनी पड़ती हैं. There are thousands of qualities जो हमें अपने अंदर possess करनी पड़ती है. So इस पर्टिकुलर सेक्शन से ये सब टेस्ट होता है कि क्या वो क्वालिटीज हमें हैं, क्या हम उन क्वालिटीज को एक प्रैक्टिकल वे में उतार पा रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज इट ऑल्सो टेस्ट द कैंडिडेट्स इंटरपर्सनल स्किल्स 100% भाई, क्योंकि आफ्टर ऑल हॉस्पिटैलिटी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन विद द पीपल, विद द कस्टमर एंड विद मेनी मोर. सो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को भी टेस्ट करता है कि आपके रिएक्शन देने का तरीका कैसा होगा व्हेन यू आर इन द रियल फील्ड. The questions are set in such a situational way जहाँ पे ये बात करेंगे कि आपके reaction कैसे होंगे. The next thing is that this section unfortunately has no provision of correct answers. कि यहाँ इस particular section में आपको correct answer जैसा कुछ नहीं मिलेगा. There are only provisions of the most appropriate answers. The very important explanation which I will give you right now about this section is कि correct answers और most appropriate answers में क्या फर्क होता है. There could be more than two correct options when you are talking about most appropriate answers, and जब हम बात करते हैं correct answers की, there will be only one answer to a question. So हमें ये choose करना होगा कि दोनों सही है, पर दोनों में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है. So hope you'll understand this thing. Next is कि जिस हिसाब से इन तीन क्वालिटीज की मैंने बात की, उसी तरीके से अब इस सेक्शन को हमें अलग तरीके से अप्रोच करने की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ताकि इस सेक्शन में हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें. सो ऐसी क्या चीजें हम, ऐसी क्या क्वालिटीज को या ऐसे किस स्ट्रैटेजी को हम अपनाएं, इसके बारे में हम आगे की कुछ वीडियोस में बात करने वाले हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. और अगली स्लाइड में frankly speaking about the service sector aptitude in the hotel management entrance examinations, इस particular section का कोई particular syllabus division हमें आज तक ऐसा नहीं मिला. So being a hotel management student, I thought why not to divide this section on the basis of the qualities which they correspond. So कहने का मतलब ये है कि आप जब होटल इंडस्ट्री में होते हैं, there are many qualities जो हमें possess करनी पड़ती हैं. So क्योंकि having a small analysis of this particular section, मुझे ये पता चला कि ये जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ये होटेलियर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज पे भी कोरस्पॉन्ड करते हैं. सो मैंने कोशिश की है कि एक होटेलियर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है मैं उन्हें इस पर्टिकुलर वीडियोस के फॉर्म में आपको बता सकूं और उसी के थ्रू हम इस सेक्शन को समझने की कोशिश भी करेंगे. So the first two important qualities of a hotelier are punctuality and patience. So what is punctuality and what does it means to me as a hotelier?
So word punctual originates from the Latin word punctual. So what is punctuality and what does it mean to me as a hotelier? So the word punctual originated from the Latin word punctualis. So the term originated from the Latin term punctualis, which means a point, and to be punctual means that you have to arrive at the right point of time for your particular appointment of work. So पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस हर एक प्रोफेशन में है, इतना तो माना जा सकता है। उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट या होटल इंडस्ट्री भी पंक्चुअलिटी पे काफी स्ट्रेस करती है। So in the field of hospitality you have to be at most punctual because you are now not dealing with machines but you will be dealing with human beings. So हमारा समय पर रहना काफी जरूरी है when we are in the hospitality industry. So एक बहुत अच्छी कहावत है जो हम अक्सर अपनी क्लासेस में सुनते आए हैं दैट यू शुड वेट फॉर द कस्टमर, कस्टमर शुड नॉट वेट फॉर यू। सो इतना याद रखिएगा कि जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको कस्टमर से पहले पहुंचना है अपने काम पर और कस्टमर का इंतजार करना है, ना कि कस्टमर आपका इंतजार करना चाहिए। ये काफी खराब इंप्रेशन देता है व्हेन यू आर वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री। So let's move towards the questions जो इस particular quality को correspond करेंगे। So your first question for today is, your teacher tells you well in advance that a certain project needs to be completed within 2 weeks of time. So what would you do? First, do you work patiently and complete it within the given time? Second is, leave the work for a while, think that I'll be doing it later. Third is, feel panicky and start devoting all your time to it. And fourth, ignore the work thinking that it is just a day's job. So अगर मैं आप लोग की जगह पर इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता तो शायद मैं ए और सी के बीच कंफ्यूज होता। रीजन बीइंग मेरे लिए इस सेक्शन को जानने के हिसाब से जितना मैंने समझा है, ये सेक्शन मेरी प्रायोरिटीज को चेक कर रहा था। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वे। तो इस चीज को हम दो बेसिस पे बांटते हैं कि इस समय हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हमारे पास समय काफी है, फर्स्ट थिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम जिसे वी कैन इन्वेस्ट हियर। सेकेंडली वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ वर्क जो हमें उस पर्टिकुलर टाइम में करना है। सो किस तरीके से हम उसे अप्रोच करेंगे? ए कह रहा है कि मैं अपना काम बहुत पेशेंटली कंप्लीट करूं गिवन टाइम के अंदर। बी कह रहा है कि काम को छोड़ दो, आराम से थोड़ी देर के बाद देखा जाएगा। सी को कहा गया है कि भाई मैं एकदम परेशान हो जाऊं और अपना सारा समय उसी को देने लग जाऊं, बाकी चीजों के बारे में सोचना थोड़ा सही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। एंड फोर्थ इज, काम छोड़ दूं, ये सोचो कि भाई एक ही दिन का तो काम है, कितना लग जाएगा समय। सो बट इफ दिस सिचुएशन अराइजेस बिफोर यू, आपके क्या रिएक्शन होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बिकॉज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हम अपनी पैनिक सिचुएशंस में या हमारी जो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में कैसे काम करते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते। बट इफ यू आर स्टक बिटवीन ए एंड सी, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैं काम को पेशेंटली करता, हर चीज को मैनेज करता हूं बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रक इन अ सिचुएशन जहां पे कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू सर्च फॉर मिडिल पाथ्स। और आई थिंक ए इज अ करेक्ट मिडिल पाथ जहां पर मेरा अप्रोच हो सकता है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, यू आर टायर्ड बट यू हैव टू कंप्लीट एन इंपॉर्टेंट टास्क। यू हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ टाइम बट इट नीड्स सम मोर टाइम। सो हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? A, you will think about the ways to escape the work. B, think about the problems that you are facing. C, think about how much work you have already completed. And D, think about what can happen if you don't do it. So, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? So, भाई क्वेश्चन ऐसा है कि भाई पंक्चुअलिटी से तो रिलेशन रखता ही है, साथ ही साथ हमारे मोटिवेशनल फैक्टर को भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि भाई
करेक्ट ऑप्शन तो कुछ नहीं हो सकता इन चारों में से, इतना तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही सकते हैं। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि अगर मुझे इस वर्क को टाइम से कंप्लीट करना है तो ऐसा क्या फैक्टर है जो मुझे हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, और अगर आप ड्रॉप आउट भी है कभी ना कभी, तो हम सब स्कूल्स में रहे होंगे और हमने लास्ट मोमेंट पे 12th बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किए होंगे या फिर कभी ना कभी कुछ ऐसी चीजों को फेस किया होगा। सो हमारा क्या रिएक्शन रहा होगा? सो भाई पहली चीज तो कि भाग जाओ काम से, यू थिंक अबाउट द वेज टू एस्केप द वर्क, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम अपने काम को एस्केप करें, स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये एक बहुत खराब क्वालिटी है होटेलियर की, तो ए ऑप्शन पहले रिजेक्ट हो जाता है। सेकंड इज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। अब भाई मैं सोचते रहूं कि भाई मेरे पास कितनी प्रॉब्लम्स है और मैं भी ना करूं, तो वो इस ऑप्शन को भी मैं नहीं रखूंगा। सी इज थिंक अबाउट हाउ मच वर्क यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिव वाइब भी देगा कि भाई मैंने अभी तक अपना, हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा काम बचा हो मेरे हाथ में, बट आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं ओवर थिंक करके उस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो आई थिंक सी कुड बी एन ऑप्शन। एंड डी, थिंक अबाउट व्हाट कैन हैपन इफ यू डोंट डू इट। ये थोड़ा नेगेटिव टर्म्स पे है बट स्टिल वर्क ड्राइविंग के लिए ठीक है। So the most correct option and the most appropriate amongst all is C, which is think about how much work you have already completed. अगर आप ये जान लेते हैं कि भाई मैंने इतने से समय में इतना सारा काम अगर कंप्लीट कर लिया है, so अगर मैं थोड़ा और समय लगा दूं तो क्या वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता? So इस बात को समझिएगा। And let's move towards the next important quality of a hotelier, that is patience. So the term patience has arrived from the Latin word patientia. It's patentia, literally means a derivative of pati, literally means to suffer. So patience means to suffer, but ये चीज होटल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी उल्टी है। But if I'll say patience, it means to learn in hotel industry. So please इसके literal meaning को आप अपने प्रोफेशन के ऊपर मत लीजिएगा, बिकॉज ये काफी अच्छी बात है कि होटेलियर को पेशेंस पोजेस करना आता है। सो बीइंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, पेशेंस स्टैंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन यू। सो द होटेलियर नीड्स टू एक्वायर दिस क्वालिटी, और ये हर एक, आई शुड से, मेजर जो फॉर्म्स हमारे पास आते हैं फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इन क्वालिटीज को जरूर चेक करते हैं। सो पेशेंस होना एक होटेलियर में काफी जरूरी है, because the field is more to deal with humans and their comfort away from their homes. Hence, a professional needs to be very patient in the hospitality industry. आपको ये बात समझना होगा कि आप जो चीजों को डील कर रहे हैं, आपके पास आपका कस्टमर सिर्फ इसलिए आया है कि उसके पास कोई दूसरी जगह है नहीं जाने को इस समय। सो इतना समझना अभी सही रहेगा कि बिकॉज होटल इंडस्ट्री मोस्टली डील्स विद ओनली पीपल, सो पेशेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चलिए बढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सो यू आर गोइंग बैक क्वाइट लेट फ्रॉम योर ऑफिस एंड ऑल ऑफ द सडन कार ब्रेक्स डाउन एंड मिडल ऑफ अ डिजर्टेड रोड। आपको वहां पे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। यू रिंग अप at your place and your father says that he will be there in half an hour. You cannot do anything except waiting for him. So आपका क्या एक्शन या रिएक्शन होना चाहिए? So एक चीज बता दूं कि एक बात कही जाती है कि पेशेंस से ही आदमी का दिमाग अच्छे से काम करता है। If you are able to work more patiently, आपका माइंड अच्छे से काम करेगा and you will be able to understand the fact कि मुझे यहाँ पे क्या कदम उठाना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में। सो बीइंग पेशेंट इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। सो मैं क्या करूंगा? ए, यू कंटिन्यू टू सिट इन द कार पेशेंटली एंड केयरफुली एंड कीप वेटिंग फॉर योर फादर। बी फील अ बिट स्कैर्ड। ये होता ही है कि अगर आप अक्सर किसी गलत जगह पे या कोई वीरान जगह, सुनसान जगह पर फंस गए हैं, तो आपको वहां पे थोड़ा समझना पड़ता है या थोड़ा डर तो लगता ही है। सी इज experience extreme panic in as the waiting period increases.
अब आप एकदम टेंशन में आ गए क्योंकि आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पर अचानक से बढ़ चुका है। और लास्ट ऑप्शन है डिसाइड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार एज इट इज गेटिंग मोर स्कैरी। मैं कार से बाहर चला जाऊं या कहीं पर चला जाऊं कि क्योंकि चीजें बहुत डरावनी हो चुकी है मेरे लिए। सो आई थिंक इसमें द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए, दैट इज यू कंटिन्यू टू सिट इन द कार पेशेंटली एंड केयरफुली एंड कीप वेटिंग फॉर योर फादर। मानता हूँ थोड़ा अजीब हो सकता है व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेशली अगर मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे साथ ये चीज बहुत बार हो चुकी है। सो इस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, तो हो सकता है आप में से भी कई लोग फंसे हुए होंगे। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हैं सो आपके क्या रिएक्शन हो सकते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि हम उस चीज को कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, एज आई सेड प्रीवियसली। सो the most appropriate option is A. We'll continue to sit in the car patiently and carefully and keep waiting for your father. So इतना जरूर है कि ऑप्शंस में वैरी ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। इस चीज पे एग्जाम के दौरान हमें जरूर सोचना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट question. Your colleague doesn't pay attention to say and what you say at her PC. So आपका जो colleague है जिससे आप बात कर रहे हैं वो अपने PC पर ही देख रही है, आपकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। Instead you are like screaming और उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। So इसमें आपका क्या reaction होगा? A. You'll speak loudly to make yourself heard. B. Shake her hard. आप उसे जाकर धक्का दे या फिर आप उसे like उसे आप पुश करें कि भाई होश में आओ, कुछ बात कर रहा हूँ। एंड सी यू विल वेट फॉर सम टाइम टू टॉक, या डी नन ऑफ द अबव। आप इन चारों में से कोई काम नहीं करेंगे, आप इन तीनों में से कोई काम नहीं करेंगे इनफैक्ट। सो आई थिंक सो अगर द क्वेश्चन लिटरली डिपेंड्स कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन कैसी है, क्योंकि अगर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक बी करना सही रहेगा, और अगर वर्क की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है या फिर काम इस समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप एक कैजुअल मैटर से ही बात करने गए हैं, सो आई थिंक आपका काम सी होना चाहिए। बट स्टिल आई एम टेकिंग द सिचुएशन दैट आई विल वेट फॉर सम टाइम टू टॉक। सो अगर ऐसा कुछ है हमारे साथ तो आई गो विद सी, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है, मैं ये बात मानकर चल रहा हूँ कि मैं इस समय कैजुअल टॉक के लिए गया हूँ अपने कलीग के पास। सो मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा पेशेंटली रिएक्ट करना चाहिए एंड आई शुड वेट फॉर सम टाइम टू टॉक विद हर और हिम। सो होप यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट, बट डू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। सो hope you have got my point. So now we have almost reached to the end of this video. Thank you for watching. After watching this video, do go and watch the other videos जहाँ पे हमने NCHN CT JEE और इंडिया के other hotel management related exams के बारे में कुछ informations दी हैं। The video links are in the description below. Please do go and watch them. क्योंकि NCHN CT JEE को completely समझना आपके लिए बहुत जरूरी है before अंडरस्टैंडिंग दिस सेक्शन ऑफ सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बात की सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन की, उससे अप्रोच करने के तरीकों की, उसमें रिलेटेड फेस करने वाले आपके प्रॉब्लम्स की और उसके सॉल्यूशंस की। उसके बाद हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट होटेलियर की क्वालिटीज की और उन पे कोरस्पॉन्ड करने वाले कुछ क्वेश्चंस की। प्लीज डू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम अपने कंटेंट्स को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। Please do, if you're a new viewer, please do subscribe to our channel for any further updates regarding the competitive exams. And do like this video if you liked it. This is your hotelier buddy Prajwal signing off. Bye bye.